وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے چھیدا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 52واں باب 13ویں آیت سے لے کر 53ویں باب کی 12ویں آیت تک۔ دیکھ میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بہتیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرہ سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح بہتیری قومیں اسے دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کومپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے۔ حالانکہ ہم اسے مبروس سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لادی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برہ کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے، اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اسے قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اسے بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کی دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بہتیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بہتیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا، اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پس اس نے بہتیروں کے گناہ اٹھا لیے، اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں۔ زبور نمبر 31، اس کی 2 سے 6، 12 سے 13، 15 سے 17 اور پھر 25ویں آیت۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی بھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کی خاطر مجھے نجات دے۔ اپنا کان میری طرف جھکا، اجلت کر کے مجھے چھڑا۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حصین قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ تو میری چٹان اور میرا قلعہ ہے، اور تو اپنے نام کی خاطر میری ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔ تو مجھے اس جال سے نکال لے گا جو انہوں نے میرے لیے چھپایا ہے، کیونکہ تو میری جائے پناہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند خدائے صادق،
तू मुझे बचाएगा। मैं अपने सब दुश्मनों के आगे बाइसे मलामत, अपने हमसायों के नज़दीक निशानाए तज़हीक और अपने जान पहचानों के लिए खौफ का बाइस बना। वो जो मुझे बाहर देखते हैं मुझसे दूर भागते हैं। मैं मुर्दे की मानित दिल से फरामोश कर दिया गया हूँ। मैं टूटे हुए बर्तन की तरह हो गया हूँ। पर मैं ए खुदावंद तुझ पर तवक्कुल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है। मेरा अंजाम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों की गिरफ्त से और मेरे अकूबत रिसानों से छुड़ा। अपने खादिम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा। अपनी शफकत से मुझे बचा ले। तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हो मजबूत हो और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नेकोकारी सीखो, अदल के तालिब रहो। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब 10वीं और फिर 16वीं से 20वीं आयत तक। ए सदूम के हाकिमों, खुदाउन का कलाम सुनो। ए अमूरा के लोगो, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। पस नहाओ और पाक हो और अपने कामों की शरारत मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो और बदी करने से बाज आ जाओ। नेकोकारी सीखो, अदल के तालिब हो, मजलूमों की फरियाद रसी करो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवा के हामी हो। आओ बाहम दलील करें। खुदावंद फरमाता है, और अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमज की मानिद हों वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाएंगे, और अगरचे वो अर्गवान की तरह सुर्ख हों तो वो ऊन की मानिद उजले हो जाएंगे। अगर तुम चाहो और तुम सुनो तो तुम ज़मीन की अच्छी चीज़ें खाओगे। पर अगर तुम इनकार करो और सरकश हो तो तलवार तुम्हें खा जाएगी, क्योंकि खुदावंद अपने मुंह से फरमाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो अपनी रविश को दुरुस्त रखे उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। मेरे जीजो, आई हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 50 उसकी 8वीं से 9वीं, 16वीं से 17वीं और फिर 21वीं से 23वीं आयत तक। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सोख्तनी कुर्बानियां हर वक्त मेरे सामने हैं। मैं तेरे घर से बैल नहीं लूँगा, ना तेरे बाड़ों से बकरे। पर खुदा शरीर से यूं कहता है, तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तू तरबियत से नफ़रत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। जब तू ये करता है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझ ही सा हूं? मैं तुझे तंबी करके ये बातें तेरे पेश नज़र कर दूंगा। ऐ तुम जो खुदा को फरामोश करते हो, इसे सोच लो। ऐसा ना हो मैं तुम्हें फाड़ डालूं और छुड़ाने वाला कोई ना हो। जो कोई हम्द की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी ताज़ीम करता है, और जो अपनी रविश को दुरुस्त रखे उसे मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे जीजो, आई हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 23वां बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। तब यसू ने हुजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फ़की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो,
लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कूर निशात और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मसीह ने अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्माबरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 18वां बाब पहली आयत से लेकर 19वें बाब की 42वीं आयत तक। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ वादिये किद्रून के पार गया, जहाँ एक बाग था जिसमें वो अपने शागिर्दों समेत दाखिल हुआ, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशालों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़े होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया कि यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा कि मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास ही खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा, और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के काहिन आज़म कयाफा का सुसर था। ये वही कयाफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिन आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाज़ा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब काहिन आज़म ने यीशु से
उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यसू ने उसे जवाब दिया कि मैंने एलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उन्हें मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कहीं तो इस पर प्यादों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को तमांचा मारकर कहा, तू काहिने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? और हनान ने उसे बंधा हुआ कयाफा काहिने आज़म के पास भेज दिया। और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था, पर उससे कहा गया कि क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं हूँ। फिर काहिनी आज़म के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। तब यीशु को कयाफा के पास से किला में ले गए, और सुबह का वक्त था, और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हों, बल्कि फसा खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक़ में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझे मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक़ की गवाही दूँ। जो कोई हक़ का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा कि हक़ क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा कि उसे नहीं बल्कि बराबा को, और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमांचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हमारी एक शरह है
और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि इसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातूस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातूस ने उससे कहा कि तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं, और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज़्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातूस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे कि अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर खा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातूस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जुबाता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा कि देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए कि ले जा, इसे सलीब दे। पिलातूस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजुता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातूस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातूस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातूस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिन्हें उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ, और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातूस से अर्ज़ की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत को सलीब पर ना रहें, क्योंकि सबत का वो दिन ख़ास था। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ीं, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था।
लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ीं, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुईं ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि वो उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाद अज़ीं यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस से इजाज़त तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातूस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदीमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर्र और ऊद मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुइयों के साथ कफनाया, जिस तरह के कफन करने के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह पर उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूंकि ये कब्र नज़दीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।